अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महेश्वरम में मालाबार ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आज किया इफ्तिताह। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर श्रीधर बाबू और कंपनी हुक्काम ने की शिरकत। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे कल 4 जुलाई को करेंगे एलबी स्टेडियम में हैदराबाद में जलसे से खिताब। 25,000 कांग्रेस कारकुन और कायदीन की शिरकत मुतवक्को। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी ने बताई तफसीलात। हैदराबाद मेट्रो रेल की तोसी के लिए ग्रेटर हैदराबाद के बीजेपी एमपीज और मरकजी वजीर किशन रेड्डी मरकज पर डालें दबाव। तेलंगाना कांग्रेस की एमएलसी विजय शांति की अपील। बीसी यानी पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात की तायद में 17 जुलाई को तेलंगाना भर में रैली को एहतजाज होगा। बीआरएस एमएलसी कविता ने आज फिर किया ऐलान। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई से 21 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने किया ऐलान। और गाजा की मजलूम सरजमीन एक बार फिर काबिज इसराइल की दरिंदगी का बड़ी निशाना। ताज़ा हमलों में मजीद 82 फ़लस्तीनियों की शहादत। 48 घंटों में 300 फ़लस्तीनी बाशिंदे लुक़्मे अजल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। मालाबार ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज महेश्वरम ज़िला रंगारेड्डी में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर सनत डी श्रीधर बाबू, साबिक़ एमएलए मुमताज़ अहमद खान और मालाबार कंपनी के हुक्काम ने भी शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में फ्यूचर सिटी और कांग्रेस हुकूमत के दीगर इक़दामात का तज़किरा किया। Right state, right city. Why? Because we are highest consumers of gold. Telugu people or Telugu women are highest buyers of gold. After that, maybe Kerala, not Kerala, Tamil Nadu, after that Karnataka, 4th place is Kerala. But manufacturing side, Malabar Gold is one of the best organization. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ను పెట్టడం ద్వారా సరైన రాష్ట్రంలో సరైన వ్యాపారాన్ని మీరు ప్రారంభించారు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రము పెట్టుబడులను ఆకర్షించే దిశగా తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలోనే ఒక వ్యాపార కేంద్రంగా హైదరాబాద్ నగరాన్ని తీర్చిదిద్దాలని ఈరోజు మన ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తున్నది. అందులో భాగంగానే ముఖ్యంగా ఈ మహేశ్వరం ఈ ప్రాంతాన్ని 4వ నగరంగా భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రణాళికలతో ముందుకొస్తున్నాం. ఒకప్పుడు కులీ కుతుబ్ షాయిలు హైదరాబాద్ నగరాన్ని నిర్మిస్తే, ఆ తర్వాత నిజాం నవాబులు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ని నిర్మిస్తే, ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సైబరాబాద్ని 3వ నగరాన్ని నిర్మించారు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 4వ నగరాన్ని భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని ఈరోజు ప్రపంచానికి అందించబోతుంది. ఆ భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ మహేశ్వరం శాసనసభ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్నది. 30,000 ఎకరాలతోని 400 stores now. Listen to me, Make in India, market in the world. We do all kind of products in all manufacturing, and we take care of all the jewelry with the finest quality and make the best product to the customer. So Malabar always keep the customer in the mind, and we do manufacturing for highest quality with the process control and making the gold and the process to the customer appeal, look and feel, and they can able to feel that the jewelry is coming up with the very well in the city. And being in the Malabar Gold and Diamonds, Telangana has given a very warm welcome to us, and they given a good opportunity to us to build such a world integrated manufacturing facility, which consists of refining to in the final product. It is of platinum jewelry, casting jewelry, stone jewelry, all kind of jewelry which can carry into Telangana. I thanks to government for giving us such a wonderful support. The plant consists of completely environmentally, socially governed, and we comply all the policies and procedures. Worldwide, the facilities, if you look at the jewelry plant will be Telangana will be. The Telangana factory is one of the
रियासती वज़ीर सनअत डी श्रीधर बाबू ने दावा किया कि तेलंगाना हुकूमत सनतों को फ़रोग देने इजाज़तनामों के हसूल को 15 दिनों में मुकम्मल कर रही है। उन्होंने भी कहा कि तेलंगाना में सनतों के फ़रोग के लिए तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत तमाम तर ज़रूरी इक़दाम और ताउन कर रही है। Come up with MSME policy of 2024 to encourage and to create a more vibrant ecosystem which can really help the big industries to grow along with the small industries. Why I'm saying this? We don't literally chase factories. We would like to build ecosystems. And in last year, manufacturing exports from Telangana crossed about 1.2 lakh crores, mostly in pharma, engineering goods and electrical machinery. And in streamlined approvals and the smarter future what we have, our flagship single window system, it's a national benchmark today for the approval efficiency. Maybe the Malabar Gold has also would have seen how fast our, the efficiency of our single window system exists. And we have cleared about 4,200 new industrial proposals with 98% of the applications approved within 15 days. Telangana is now planning to integrate the cutting-edge technology, that is artificial intelligence, into this single window system for predictive timelines, automate compliance systems and fully digital and paperless. सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे कल यानी 4 जुलाई को दौरा हैदराबाद करेंगे। इस सिलसिले में एलबी स्टेडियम में जलसे-ए-आम की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर कांग्रेस के लीडरान मौजूद थे और कांग्रेस पार्टी की दही सतह से रियासती सतह के तमाम कायदीन और कारकुन इसमें शिरकत करने वाले हैं। रियासत भर से 25,000 कारकुन और कायदीन की शिरकत मुतवक्को बताई गई है। इस सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमारक ने मीडिया से बातचीत की और इजलास के हवाले से तफसील बताई। Addressing a AICC president to all the village level Congress president, it is going to be it is a biggest meeting, and this is the first of its kind in the country, and we are organizing in a big way. I am requesting and giving a call to all the village presidents, mandal presidents, block level presidents, and DCC presidents to attend without fail by 3 p.m. on 4th of this month. What is the prime? See, the prime idea is to send the Congress party, spread the Congress party ideology, and the AICC president wants to speak directly to all the village level presidents. So, this is what. BJP is organizing emergency exhibition. हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की तोसी के हवाले से मरकजी हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। इल्ज़ाम तेलंगाना कांग्रेस के एमएलसी विजय शांति ने लगाया। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि महज शक नहीं बल्कि रियासत के अवाम का भी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कई बार इस सिलसिले में मरकज से दरख्वास्त की, लेकिन अब तक कोई मुस्बित नतीजा सामने नहीं आया। विजय शांति ने कहा कि चूँकि इस प्रोजेक्ट का असरा कांग्रेस हुकूमत को मिलने का इम्कान है, इसलिए मरकज़ की मोदी हुकूमत जानबूझ कर मेट्रो तोसी में ताख़ीर से काम ले रही है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी के 42 कारपोरेटर मौजूद हैं। इन सबको चाहिए कि वो मेट्रो की तोसी के लिए इजाज़त हासिल करने में सरगर्म रोल अदा करें। उन्होंने तजवीज़ी के इस मसले पर मरकज़ को कायल करने के लिए ग्रेटर हैदराबाद के बीजेपी एमपीज़ और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी को भी जिम्मेदारी लेना चाहिए। विजय शांति ने यकीन दिलाया कि अगर बीजेपी संजीदगी का मुजाहरा करे तो कांग्रेस के लीडरान भी ताउन के लिए तैयार रहेंगे। तेलंगाना कांग्रेस अमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा और उनके शौहर कोंडा मुरली ने मुलाकात की। बाद में मीडिया से बातचीत में कोंडा सुरेखा ने कहा कि ज़िला के हालात से मीनाक्षी नटराजन को वाकिफ़ करवाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरक्की और राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना उनका असल मकसद है। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी पार्टी को अक्सरियत में लाने के लिए भरपूर कोशिश होगी। अपनी बेटी की सियासी एंट्री के हवाले से सुरेखा ने कहा कि इस बात पर मुनासिब वक्त नहीं है कि बयान दिया जाए, अलबत्ता आइंदा इलेक्शन में उसे प्रकाल हल्के से मैदान में उतारने का मनसूबा ज़ेरे गौर है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी खतूत से बाहर नहीं जाएंगे। इस मौके पर कोंडा सुरेखा के शौहर कोंडा मुरली ने भी कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और पार्टी क़यादत के तमाम अहकामात पर अमल करेंगे। ఆలోచనలు వాళ్ళకు ఉంటాయి, ఆలోచనలు మేము షేర్ చేసుకునే పద్ధతి మాకు ఉండదు। వారి ఆలోచన ఉంది, వారి మంత్రి పదవి ఉంది। ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర పోయి మీరు చేయి ఫారెస్ట్లో మరి ఇప్పుడు కోయలకు గుత్తి కోయలకు న్యాయం చేయకుండా ఉండవని చెప్పొద్దు కదా, కంపల్సరీ న్యాయం చేయాలని కూడా ఇప్పుడు చెప్పినాం। అదే పద్ధతిలో
ఎవరి ఆలోచన వాళ్ళకు ఉంటుందన్నా. ఇలా ఒక కుటుంబంలో అందరు కుటుంబాలకే చెప్పాలని రూల్ లేదు. మా అన్న ఉన్నాడు, మరి మా అన్న చెప్పినట్టు మా అన్న కూడా మా కుటుంబంలో ఒక సత్యం సార్ అని మా కుటుంబంలో ఒక భాగం. ఆయనే మీటింగ్లోకి పోతాడు, మొదలు కూర్చుంటాడు. ఈయన ఎవరు ఆయన అడుగుతాడు. ఎందుకంటే ఎవరెవరు అనుకునేది సాయంత్రం వచ్చి మన అంతే తప్ప మరి మా పాప అనుకునేది నాకేం తెలుస్తుంది. లండన్ నుంచి వచ్చింది. అసలు నేను నిన్ననే వచ్చినా, మరి ఇంకా మా మనవరాలతో కూడా మాట్లాడలేదు. మరి మా మనవరాలు నేను అమ్మ అనిపిస్తా. మరి సుస్మితా పటేల్ ఏమున్నది అంటే మంచిగా మాది बीआरएस एमएलसी कविता ने ऐलान किया कि बीसीआई ने पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात की तायद में 17 जुलाई को तेलंगाना भर में रैल रोको एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना जागृति की जानिब से एहतजाज का कविता ने ऐलान किया और कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत इस मामले में मंजूरी दे ताकि पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात मिल सके। कविता ने रैल रोको एहतजाज के पोस्टर्स भी इस मौके पर जारी किए और मीडिया से भी बातचीत की। From Telangana Jagriti and United Pulim Front, we have today inaugurated a poster for the Rail Roko, which is going to be held on July 17th. We also wrote a letter to Honorable Shri Kargeji to immediately take this issue up with the national union government and make sure that the bill be given back to the Telangana state. It has been passed in the assembly and council here, but it is pending with the Rashtrapati ji. So I request the Congress party to put some pressure on the Bharatiya Janata Party to pass this bill immediately. संयुक्त किसान मोर्चा की जानिब से 9 जुलाई को मुल्की सतह पर एहतजाज की कॉल दी गई है। मुल्की मईशत की खराब सूरत हाल, किसानों को फसल का सही दाम न मिलना और वर्कर्स की कम तनख्वाहें और मुल्क में बेरोजगारी समेत कई मामलात को लेकर यह एहतजाज होगा। इस सिलसिले में हैदराबाद में किसान मोर्चा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया और हमारे नुमाइंदे सईद इस्माइल ज़बीउल्लाह ने मुतल्लिक़ा अफराद से बातचीत की। आज संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से यहाँ पे प्रेस मीट किए। जुलाई 9 तारीख को पूरे देश भर में एक ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक का पुकार हुआ है और ये पूरे देश में जो भी ट्रेड यूनियंस हैं उनके तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा जिसके अंदर 500 से ज़्यादा किसान संगठन शामिल हैं, इन दोनों के तरफ से एक तरफ से वर्कर्स जो हैं और एक तरफ से फार्मर्स दोनों मिलके पूरे देश में एक जनरल स्ट्राइक का कॉल दिए हैं और इस जनरल स्ट्राइक को कामयाब करने के लिए यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से ऐलान हुआ है और हम पूरे तेलंगाना के जनता से विनती करते हैं कि जब श्रमिकों का और किसानों का जो भी समस्या है, जो भी कठिनाइयाँ हैं, उनको हल करने में मोदी सरकार पूरी तरह से नाकामयाब है और इस नाकामयाबी का जो असर है वो पूरे हमारे देश में देश के इकोनॉमी जो है इसके ऊपर पड़ रहा है। हमारे देश में बढ़ती जो अनएम्प्लॉयमेंट है और किसानों को अपने फसल का सही दाम ना मिलना, ये और जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको भी सही तरह से उनका वेतन ना मिलना, इन सब के वजह से देश में जो हमारे मोदी सरकार दिखाना चाहती है कि पूरे विश्व भर में हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन के रूप में दिखाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो देश में अगर श्रमिक और किसान और साधारण आम आदमी अगर कठिनाई में है तो देश को एक विकसित देश या डेवलप्ड कंट्री कैसे माना जाता है, ये हम पूछ रहे हैं। और जो मोदी सरकार ने जुलाई 9 सार्वत्रिक समिट को सक्सेस करने के लिए पूरा से पूरा ग्रामीण पट्टन जनता भागस्वामी में करना चाहिए। आज सेंट्रल गवर्नमेंट एंटी
एंटी फार्मर्स, एंटी वर्कर्स, एंटी पीपल पॉलिसीज़ वो केंद्र में पूरा देश में अमल कर रहे हैं। वो एंटी पॉलिसीज़ पूरा से पूरा हमारा देश में दरिद्रता बढ़ने के लिए वो चांस है। इसीलिए हम पूरा वो पोषक आहार लेने के लिए वो चांस नहीं मिल रही। इसीलिए हम पूरा एग्निस्ट करने के अपोजिट करने के लिए मोदी को, आरएसएस को, बीजेपी को, पॉलिसीज़ को, उनका पॉलिसीज़ को पूरा से पूरा एग्निस्ट करने के लिए आगे आओ। तेलंगाना के रियासती वज़ीर जी वेंकट स्वामी ने सिक्योरिटी वाक़े के हवाले से मीडिया से बातचीत की और कहा कि 10 अफराद अभी भी लापता हैं, जिनका हाल मालूम करने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने भी कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत तमाम तर ज़रूरी इक़दाम कर रही है। ज़ख्मियों के बेहतर इलाज और उनकी मदद का काम हो रहा है। रियासती वज़ीर ने कहा कि इब्तदाई जाँच रिपोर्ट से हादसे की वजूहात का पता चलाया जा सकेगा। Until the interim report comes, we are not in a position to take decisions. In the meanwhile, we have ensured government has put pressure on the company and asked them to announce 1 crore benefit to the kith and kin of the persons who have expired in this incident. The total figure is around more than 38. So we will know the correct figures by the end of the day. We have also told that 10 lakhs should be paid to people who are injured, and another 5 lakhs to people who are got minor injuries. So rehabilitation of people, our CM has already announced that 1 lakh should be given to the people who have to be transported out with for their families, and 50,000 to the people who are injured, so that the immediate needs are taken care of. So government has proactively acted and trying to see that as much of help is given to the workers who are affected by this blast. Sir, still some workers are missing. What about they? I told you only 10 are missing as on yesterday night. Rest of them are identified. I think 5 workers' families are in touch. 5 people with families are not in touch. So I think we'll get a clarity by end of the day. बिहार इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी समेत दीगर उमूर पर कांग्रेस तेलंगाना के सीनियर कायद हनुमंत राव ने मीडिया को बयान दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ बीजेपी, मोदी और मरकजी हुकूमत के इशारों पर काम कर रहा है। India government is saying that they are following, but election commission is independent. They are allowed to everybody. This is a democracy. Baba Sahib Ambedkar wrote a constitution. Everybody should give a equal opportunity. But unfortunately, that they are not doing, because in Bihar election, they want to hook and cook. They want to win the election. So now they have started with the enrollment of the voters. This is a clearly saying that previous, when NDA government as a chief prime minister was, he has started Note Bandi. Now Vote Bandi also started. This is a real unfortunate for democracy. I am condemning this type of attitude by Election Commission. Election Commission is purely, everybody should get the opportunity. When India Kudami, India Alliance, as everybody has gone there, why will allow only 2 persons? This is a clearly saying that to democracy is not there. It is the only dictatorship is going on in Bihar. I am right? బీహార్ ఎన్నికల్లో జరగబోయే ఎన్నికల్లో ఓటర్ల లెక్క
शहर हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्कूल बसों, वैनों और ऑटोज़ के खिलाफ खुसूसी मुहिम जारी है। इसमें ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने आए सदन संतोष नगर चौराहे पर कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली बसों और ऑटोज़ को रेगुलेट करने के लिए मुहिम चलाई। इसके अलावा शराब पीकर स्कूल की गाड़ियाँ चलाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ भी सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। बच्चों की ज़िंदगी खतरे में डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का पुलिस ने इंतबाह दिया। इजाज़त से ज़्यादा बच्चों को ले जाने वाली गाड़ियों को जुर्माने लगाए जा रहे हैं। इन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होंगे। इत्तलात के मुताबिक हालिया दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने अपनी मुहिम के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी पर 8,930 ऑटोज़ और 390 स्कूली बसों के खिलाफ केसेस बुक कर लिए थे। हैदराबाद के सरतनगर के राजा राजेश्वरी नगर इलाके में एक मकान में रेफ्रिजरेटर फट पड़ा। जुमेरात की सुबह सत्यनारायण नामी शख्स के मकान में मौजूद फ्रिज अचानक फट पड़ा और इसमें आग लग गई। इसके साथ ही चंद ही लम्हों में आग ने पूरे घर की अशिया को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। खुशकिस्मती से इस वाक़े के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस दौरान मुकामी रुकन असम्बली सिवास यादव ने दौरा करते हुए मुतासरा खानदान से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया गया। और बढ़ते ही चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब पार्लिमानी अमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने ऐलान किया कि पार्लियामान का मानसून इजलास 21 जुलाई से शुरू होगा और 21 अगस्त तक जारी रहेगा। तमाम 13 और 14 अगस्त को यौम आज़ादी तकरीबात की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं होगी। रिजिजू ने कहा कि दोनों ऐवानों में 21 जुलाई को सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इंडिया इत्तेहाद, जो कि 16 अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल है, इसने वज़ीर आज़म मोदी को इससे पहले एक मुश्तरका मकतूब लिखा था जिसमें पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की गई, लेकिन मरकज़ ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और अब मानसून इजलास की तारीखें तय की गई हैं। इम्कान है कि हुकूमत कुछ अहम कानून साजी लाने पर इस दौरान गौर कर रही है, जिसमें एटमी तवानाई के शोबे में निजी शोबे की शराकत को आसान बनाने के लिए एक कानून भी ज़ेरे गौर है। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी का मामला संगीन हो गया है। ताज़ा सरकारी आदाद शुमार ने मुल्क भर में फिक्र की लहर दौड़ा दी है। जनवरी 2025 से मार्च 2025 के दौरान सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने खुदकुशी की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस मामले पर मरकज़ की मोदी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि वो किसानों के मसाइल पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और सिर्फ अपनी तशहीर पर तवज्जो दे रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सोचिए सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने खुदकुशी की। क्या ये सिर्फ एक नंबर है? ये बर्बाद घराने हैं जो शायद कभी ना संभल सकेंगे और मोदी हुकूमत खामोश है, बेरुखी से सब देख रही है। उन्होंने लिखा कि किसान हर दिन कर्ज में और गहराई तक डूब रहा है। बीज, खाद, डीजल सब महंगे हो गए, मगर MSP यानी कम से कम इमदादी कीमत की कोई गारंटी नहीं है। जब किसान कर्ज माफ़ी का मुतालबा करता है तो इसे नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन जिन सनतकारों के पास करोड़ों रुपए हैं उनके कर्ज मोदी हुकूमत आसानी के साथ माफ़ कर देती है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी हुकूमत और इसके फैसलों पर शदीद तनकीदें की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को आवाम की परवाह नहीं है। चंद शख्सियात के तक मोदी हुकूमत काम कर रही है, जमहूरियत के खिलाफ इक़दामात हो रहे हैं। बीजेपी ने किसी दलित को अब तक चीफ मिनिस्टर का ओहदा भी नहीं दिया। बीजेपी में किसी पसमानदा तबकात का लीडर नहीं उभरा। मोदी को ऐवान में आना चाहिए और हर हसास मामलात पर हक गोई से काम लेना भी ज़रूरी है। और ये इंदिरा जी की बात करते हैं तो मैं जरूर कहना चाहती हूँ, इंदिरा गांधी जी में तो ये दम था कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आप तो पाकिस्तान के चैनल नहीं बैन कर पा रहे हैं, आपसे क्या अपेक्षा की जाए? असलियत ये है, पाकिस्तान के चैनल बैन करके बैन हटा दिया आपने। आप अमेरिका के प्रेशर में आके तब सीजफायर करते हैं जब सेना आक्रामक थी। असलियत ये है कि ये सब करने के लिए साहस चाहिए और दम चाहिए। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। इंदिरा जी की जब बात करते हैं उनसे थोड़ी प्रेरणा लीजिए, बैन तो रहने दीजिए। हरल के मामले में जो सुनवाई चल रही है उसमें सरकार की तरफ से जो ईडी ने एक तरीके से जो बताया, कहा कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की की गई चीज़ें, AJL की जो 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी वो एक्वायर की गई फ्रॉडेंटली। आप कैसे देखते हैं? सेक्शन 25 की कंपनी का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। पहले कंपनीज एक्ट में, नई संशोधित कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 होता है। वो उसके तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, कोई भी शेयर होल्डर ना एक नए पैसे का प्रॉफिट पा सकता है, ना डिविडेंड मिलता है, ना उसको कोई सैलरी मिल सकती है। ये किस बिना पर ये कह रहे हैं, इनको खुद पता है कि ये फर्जी केस है। अभी कोर्ट में इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। असलियत ये है कि ये 11-12 साल से केस सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है, ये झुंझुना इसलिए बजाया जा रहा है जिससे लोगों की रेपुटेशंस को खत्म किया जा सके, उनको धूमिल किया जा सके। लेकिन सच जो है वो सामने आएगा।
एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, दूसरी एक्विजिशन नहीं हुआ है, यंग इंडिया जो है वो सिर्फ एजेएल का शेयर होल्डर बना है। शायद इन बेसिक चीजों का अंतर बीजेपी के भोंडे प्रवक्ताओं को नहीं पता है, लेकिन कोर्ट में सरकारी अफसर ये कहें और ईडी ये कहे, ये अपने आप में हैरान करता है कि किस तरह से लॉ को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। हम एक और मामला है, वो है निशिकांत दुबे ये कहते हैं कि भाई 2.5 साल का फॉर्मूला हो गया था कर्नाटक में, अभी समय आएगा बाय नवंबर तक आते आते सिद्धरामैया को कहेंगे कि उनकी उम्र हो गई है, हटा दिया जाएगा, फिर डीके शिव कुमार आ जाएंगे। और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। गज़ा की मज़लूम सरज़मीन एक बार फिर क़ाबिल इसराइल की दरिंदगी का निशाना बनी, जहाँ वसी गज़ा के पनाहगज़ीन कैम्प नज़ीरात में 2 मुख्तलिफ मकामात पर हुई वहशियाना बमबारी में मज़ीद 15 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक है। इसके अलावा गज़ा में हुए फ़िज़ाई हमलों और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में सिर्फ एक दिन के दौरान कम से कम 82 फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल बन गए, जिनमें से 38 अफराद इंसानी इमदाद के हसूल के लिए इंतज़ार में थे। ज़ालिम इसराइल की जानिब से नस्लकुशी की मुहिम गुज़िश्ता 635 दिनों से जारी है, जिसके दौरान मुसलसल बमबारी और फ़िज़ाई दरिंदगी के ज़रिए मासूम फ़लस्तीनियों के घरों, खैमों और हस्पतालों को मलबे के ढेर में बदला जा रहा है। अल जज़ीरा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 48 घंटों के दौरान 300 फ़लस्तीनियों को इसराइल ने शहीद कर दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महेश्वरम में मालाबार ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आज किया इफ्तिताह। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर सीधर बाबू और कंपनी हुक्काम ने की शिरकत। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे कल 4 जुलाई को करेंगे एलबी स्टेडियम में हैदराबाद में जलसे से खिताब। 25,000 कांग्रेस कारकुन और कायदीन की शिरकत मुतवक्को। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी ने बताई तफसीलात। हैदराबाद मेट्रो रेल की तोसी के लिए ग्रेटर हैदराबाद के बीजेपी एमपीज और मरकजी वजीर किशन रेड्डी मरकज पर डालें दबाव। तेलंगाना कांग्रेस की एमएलसी विजय शांति की अपील। बीसी यानी पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात की तायद में 17 जुलाई को तेलंगाना भर में रैल रोको एहतजाज होगा। बीआरएस एमएलसी कविता ने आज फिर किया ऐलान। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई से 21 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने किया ऐलान। और गाज़ा की मज़लूम सरज़मीन एक बार फिर क़ाबिल इसराइल की दरिंदगी का बनी निशाना। ताज़ा हमलों में मज़ीद 82 फ़लस्तीनियों की शहादत। 48 घंटों में 300 फ़लस्तीनी बाशिंदे लुक़्मे अजल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।